अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बट वो कहते हैं यार, ज़िंदगी के सफ़र में कहाँ से कहाँ आ गए। वो कहते हैं ना कि जिनके हिस्से में हो सफ़रनामे, उनके हिस्से में घर नहीं आते। सो ऐसी ही कुछ जर्नी थी। यार, किसे देख रहे हो? अरे भाई, आईफिल टावर कहीं भी नहीं जा रहा, इधर मुझे तो देख लो। सो गाइस, आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स नॉट एन आईफिल टावर, इट्स एन पेट्रोनास ट्विन्स टावर। सो भाई, आपका आ गया मलेशिया। और जैसे ही मैं मलेशिया आया, एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है, हबीबी, वेलकम टू मलेशिया। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू के जो लोगों के बारे में बात किया करते थे, खुद ही पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, घर छोड़ना पड़ गया, अपनी फैमिली छोड़ दी, सब कुछ। बट यू नो, समटाइम्स इट्स गुड फॉर योर ग्रोथ। वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू मस्ट बी विलिंग टू सेक्रीफाइस समथिंग। सो टू गेन समथिंग, you have to lose something. And the reason behind that is because they say every success comes with a loss. So every success, every gain comes with a loss. So if you wanna achieve, if you wanna get something, you must have to give something up. So लाइफ में ग्रोथ के लिए ये कुछ होता है भाई। हम लड़के हैं यार, हमारे साथ ऐसा ही होता है भाई। सो यही ज़िंदगी है, घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ग्रोथ के लिए डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस आते रहते हैं, बढ़ना चाहिए आगे। So guys, in this video, I'm going to talk about my previous journey from Pakistan to Malaysia, in which I will try to cover that how I came to Malaysia, what brings me to Malaysia, and what were the reasons behind, and the most important thing, that how was my experience. Definitely, I will share with all of you. सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले I want to tell you about my strategy of my channel and my content creation, my future strategy, that what I'm gonna make now and after in future like. So guys, अगर तो आप मेरी तरह स्टूडेंट हैं and you wanna come to the Malaysia for the study visa, if you wanna come to the if you are a visitor and if you are a traveler, you wanna explore Malaysia, then this channel is definitely for you. या आप मेरी तरह स्टूडेंट हैं, so guys, literally believe me, it's gonna be really really amazing content for all of you, and I swear you would love to see that, you would love to see that. So guys, बहुत ही मज़ा आ रहा है मलेशिया में, as you can see. So जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हैं और आप भी मलेशिया स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं, सो इन दिस channel I'm gonna cover the complete process from A to Z, like university, how to choose a university, how to secure an acceptance or admission, and how to do your complete visa processing from starting to end, and how till the settlement in Malaysia. I'm gonna cover everything for all of you guys. या आप विजिटर हैं, ट्रैवलर हैं और मलेशिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन दिस इज़ ऑल्सो बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक स्टूडेंट हैं और अपनी फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि आप भी फ्यूचर में किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपनी हायर एजुकेशन, अपनी फर्दर स्टडीज़ को करना, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, देन दिस चैनल विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू, कॉज I'm not just gonna like make a simple videos and some sort of vlogs and all that. This channel is gonna be very informative for all of you guys. Literally, मैं आपको बता रहा हूँ, you're going to love it. So guys, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़े का content I will try to cover in my channel, जिसमें हम, जैसा कि मैंने बताया, हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट स्टूडेंट्स के लिए जो एक प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, दैट हाउ दे कैन come to the Malaysia, how they can secure admission in the university, how they can do the visa and all the complete process. So I will try to cover that. The second thing I'm going to show here is, like, I will show the student life here, that how students actually live in a foreign country, how they spend their life. So that's will gonna be really really important for all of the students and also for the travelers, because I will travel the Malaysia. So what I will try to do is, in this channel I will try to cover the environment, the culture, the Malaysian architect, and the Malaysian weather, and the most important thing, the beauty of Malaysia. Definitely, Malaysia is a really really beautiful country, really amazing country.
इसके अलावा आपको हम दिखाएंगे कि एक फॉरेन कंट्री में एक किसी और कंट्री का जो भी कोई पर्सन है उसकी लाइफ कैसे होती है, क्या चेंजेस आती हैं उस लाइफ में, और कैसी गुजरती है लाइफ. सो गाइस, as I have said that in this video I'm gonna cover my whole journey from Pakistan to Malaysia. So उसके ऊपर बात करते हैं. इस जर्नी का आगाज़ होता है 13 सितंबर 2024 को, जब मैं रात के 9:05 पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. एंड देन सडनली आई रियलाइज दैट यार व्हाई नॉट, दुनिया चांद पे पहुंच गई है बेटा, तुम अभी तक इधर पाकिस्तान में अपने बिस्तर पर बैठे हुए हो. सो व्हाई नॉट टू लाइक ट्रैवल द होल वर्ल्ड एंड टू एटलीस्ट गेन एन एक्सपीरियंस. तो देन मैंने एक प्लान बनाया और मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर चले. सो उस प्लान के बाद जो फर्स्ट कंट्री जब मैंने एक्सप्लोर की, एक कंप्लीट उसमें जो स्ट्रगल की, जो भी मैंने चीज़ें फाइंड आउट की, एट द एंड आई चूज इटली, द बेस्ट कंट्री फॉर द स्टूडेंट्स एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ दैट यू कैन गेट देयर. सो गाइज, मैंने इटली को चूज़ किया. देन मैंने जब ये सारी चीज़ें हो गई तो एटलीस्ट मुझे पता चला कि कुछ भी करने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैसा, मनी. सो definitely you are gonna need that. But let me tell you one thing, that Italy is the only country I would say that has too much benefits, and like very very beneficial for all of the students, and it's also providing lot of facilities to the student. So for that, for student life, I would say that yeah, definitely Canada, Australia, UK, US, all of them are like good countries. But for these countries, you need to pay a massive amount to the universities and to go there. But for Italy, they will give you a fully funded scholarships and all that. So this video is not about the Italy. So ये था, जैसे ही मैंने इटली को चूज़ किया, मेरा इटली का प्रोसेस स्टार्ट होता है सिंपली. एंड होता क्या है कि मैंने तो अपने घर वालों को जैसे ही बताया कि यार मैं लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आप शेंजन जोन का वीज़ा है, विल सेटल्ड इन माय लाइफ एंड ऑल दैट. सो कुछ ख्वाब तो दिखाने पड़ते हैं ना अपने प्लान पे. जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही मैंने ये प्लान बनाया, देन उसके बाद मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, एक्सेप्टेंस ली, देन डॉक्यूमेंटेशन. इट इज़ रियली इजी, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट द इटली इज like you are not gonna spend a lot of expenses there. Like it's only about 6 to 7 lakhs, I guess, including your traveling and all the budget. But still the one reason is the difficulty in the process of Italy is that documentation is really hard. You need to do like all of your documents, attested, apostille, then you need to make the declaration of value, statement of comparability, like your degrees compared to the Italian degrees and all that. Then you need to especially show the bank statement of like 30 to 40 lakh. बस हुआ ये कि सब कुछ किया, इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट दिए, उसमें अच्छा स्कोर अचीव किया. एंड एट द एंड क्या होता है मेरे साथ कि जब मैं एंड पे पहुंचता हूँ, गाइस, लिटरली आई टुक इन क्लासेस. सो बहुत बहुत मुझे अजीब सा लगा कि यार इवन मैंने क्लासेस भी लेता रहा अपनी उसकी. सो एट द एंड जाके एक कोई मुझे मिलता है और वो कहता है, बेटा कहाँ जा रहे हो, वेट तो करो थोड़ा सा, इतना जल्दी नहीं मांगते, ठहरो ज़रा, सब्र करो, बोला ना धिक्का मुक्की नहीं करने का. सो बस ये हुआ मेरे साथ, और जो मुझे मिला था वो था वक्त, और उसने कहा बेटा ठहर जाओ, सब्र करो. सो गाइस, आई वाज़न्ट एबल टू सिक्योर माय अपॉइंटमेंट एट दैट टाइम. दैट वाज द हर्डल इन माय जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू इटली. सो दैट्स व्हाई मैं अपनी वो नहीं कर पाया कंप्लीट अपने उस गोल को, जो मेरा था कि यार इटली जाके एक अच्छी स्टूडेंट को, जो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वहाँ पे अपनी फर्दर जो है स्टडीज़ कंप्लीट करें. सो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत डिसहार्ट हुए मेरी फैमिली भी कि यार इतना कंप्लीट प्रोसेस करके एट द एंड अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकी. इवन आई पेड फॉर एन अपॉइंटमेंट, I paid for an appointment with an agent, but still I wasn't able to secure that. So guys, but I didn't give up there. So I didn't give up. So then again जर्नी स्टार्ट की. मैंने कहा यार हार नहीं मारनी. देन मैंने बहुत बहुत सारे लोगों से मशवरे किए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यस यार, यू शुड कंसिडर मलेशिया, बिकॉज फॉर लाइक
big countries. At that time I had no more time to spend and waste there. मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उस टाइम पे कि मैं मज़ीद एक और साल भी वेस्ट कर सकूं. सो देन आई चूज मलेशिया. सो गाइस, ऐसे मैंने कहा, बट मलेशिया के लिए डेफिनेटली जहाँ पे वो 5-6 लाख का एक्सपेंस था वो डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल तक जा रहा था. अब क्या करें भाई, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते. सो मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया. सो गाइस, दैट्स हाउ माय जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू मलेशिया. उस टाइम पे मैंने प्लानिंग की, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया. सो मैं आज उन सबको दुआएं दे सकता हूँ कि यार थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु सजेस्ट मिस मलेशिया टू कंसिडर. सो दैट्स हाउ जर्नी स्टार्टेड. मैंने प्लान किया, बट डेफिनेटली देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन द बजट ऑफ मलेशिया एंड इटली. बट अब क्या करें भाई, बजट इतना बढ़ गया. देन अब एक मज़े की चीज़ हैपन हुई. अब जब मैंने फैमिली को बताया, द रीज़न बिहाइंड दैट वाज दे वर रियली डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम. उन्होंने कहा यार इतना कुछ किया है, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, बट एट द एंड अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली. अब मज़ीद हम कहीं पे भी नहीं वेस्ट करना चाहते. सो अब उनको फिर उम्मीद दिलाने के लिए, अब जैसे ही घर में कोई बात हो रही है यार बजट की कि यहाँ पे पेमेंट करनी है इस चीज़ की इसकी, अब मैं वो ओरा शो करा रहा हूँ यार क्या टेंशन है, ये ओनली 30,000, ओनली 50,000. सो अब वो सोच रहे हैं कि यार कमा ये साला घेला नहीं रहा और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है. बट डेफिनेटली गाइस, उस टाइम वो ख्वाब थे, ये कुछ प्लेन का हिस्सा था, जस्ट जोक्स अपार्ट. बट देन ये हुआ कि मैंने अपनी फाइनली जर्नी एंड की और मैंने सॉरी जर्नी अपनी स्टार्ट की और मैंने इरादा अपना पुख्ता रखा और मैंने इसमें हार नहीं मानी. इवन इन द स्टार्टेड माय फैमिली was not supporting me because the reason was they were not against me, but definitely they were thinking that again he's gonna like waste this year also. So in this decision they were not supporting me too much. But क्या हुआ कि इवन मुझे अब 2-3 लाख रुपए चाहिए थे जो मलेशिया का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए. ये एक एक्सपो होता है इस्लामाबाद मैरियट होटल में, मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं. नाम ले लेता हूँ यार, TJS वालों की तरफ से, बट अच्छी सर्विस थी TJS वालों की भी. मैंने उनसे प्रोसेस नहीं करवाया, ना ही मैं किसी एजेंट और कंसल्टेंट को प्रमोट करने यहाँ पे आया हूँ, बट स्टिल ये था कि उनकी तरफ से एक्सपो था. सो आई शुड अप्रिशिएट देम कि उन्होंने एक्सपो करवाया. सो मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी मिल गई अपनी. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मुलाकात हुई एंड एट द एंड फाइनली आई हैव चूज दिस यूनिवर्सिटी, माय यूनिवर्सिटी इन मलेशिया. और वो सारा कुछ हुआ. और जब बजट की बारी आई 2-3 लाख, as I have said, my family wasn't supporting me in that time. But what happened, even के I still remember कि मैंने अपनी एक किसी फैमिली मेम्बर, किसी करीबी फैमिली मेम्बर से जब कहा, रिलेटिव से, कि यार मुझे ये पेमेंट चाहिए, तो माय फैमिली, मेरे जो फैमिली वाले थे उन्होंने उनको कॉल करके कहा कि नो, वी आर नॉट गोना डू दैट, सो डोंट गिव एनी मनी टू हिम. सो दैट्स व्हाई देन मैंने कहा यार इतने भी गए गुजरे नहीं है, मुझे एक चीज़ की उम्मीद ये ज़रूर थी कि यार अगर मेरा वीज़ा आ जाता है और मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो देन डेफिनेटली वो मेरी फैमिली भी मेरा भला ही चाहती है, बस वो ये चाहते हैं कि ये डिफरेंट कंट्री से मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें. तो गाइस ये कुछ ऐसा होता है दिन. मैंने बस आपके भाई ने 1 या 2 मैसेजेस किए और the same day I'm gonna say to all of my friends, thank you so much guys for your support. अगले ही टाइम पे सेम डे में मेरे अकाउंट में वो पेमेंट आ चुकी थी और मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और बहुत ही सिंपल प्रोसेस था. सो देन आफ्टर दैट आई जस्ट केम टू मलेशिया एंड द जर्नी वाज रियली अमेजिंग. सो दैट्स हाउ, बहुत ही सिंपल था. बहुत जल्दी मेरा महीने में मेरा जो वीज़ा अप्रूवल लेटर आ गया, देन मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वो भी आ गया और फाइनली आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू मलेशिया. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. यहाँ पे एक चीज़ मैं जो कोट करना चाहूँगा आप सब के लिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यार लाइफ में मुझे even I still remember that when I have completed my visa process and I was in a state that I was gonna pay my university fee, and then a lot of people were suggesting me, why you choose Malaysia? Malaysia is a poor country, you shouldn't go there and all that. So यार मैं
लेकिन मैं जबकि प्रोसेस कर चुका था, मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही मैं डिसअपॉइंट हुआ। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज़ कि मुझे आइडिया था कि यार ये जितने भी मुझे मशवरे दे रहे हैं ना, इनमें से कोई भी कभी खुद मलेशिया गया नहीं है, बाहर से बैठ के मशवरे देना। और द सेकंड थिंग मे बी वो मेरे खिलाफ नहीं थे डेफ़िनेटली, वो मुझे एक अच्छी मशवरा ही देना चाहते थे। बट ये है कि हर किसी की यार अपनी सिचुएशन होती है, अपनी लाइफ़ होती है। सो बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान टू मलेशिया का सफ़र। बहुत सारे लोगों ने कहा यार मलेशिया क्यों चूज़ कर रहे हो, किसी अच्छी कंट्री में जाओ। But right now, I'm in a state so that I can say that that was the best decision of my life I have ever made. So, guys, that was my journey from Pakistan to Malaysia. बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह. I'm satisfied with my decision. बहुत अच्छी student life है. I would try to cover the complete process in another videos because this video was only about my journey from Pakistan to Malaysia, as I have explained everything to you, all of you guys. So I think its video is going too long. So that's enough for today. See you in the next video and मिलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ कवर करेंगे आपके लिए, मलेशियन एनवायरनमेंट, मलेशियन कल्चर, मलेशियन आर्किटेक्ट, मलेशियन वेदर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मलेशियन ब्यूटी ऑफ मलेशिया। सो उसमें हम ट्राई करेंगे बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स, सबके साथ इंटरव्यूज़ लें, एंजॉय करें, आपको मलेशियन फूड शो करवाएँगे सो कंप्लीट। तो अगर आप जस्ट इस चैनल पे नए हैं, आप सोच रहे हैं दैट व्हाई यू शुड सब्सक्राइब दैट, देन लेट मी टेल यू गाइस दैट यू आर गोना एन्जॉय इट। सो जस्ट press the subscribe button and also press the bell icon. Okay guys, thank you. Bye bye.